Hello medicos, welcome to Med Junction. My name is Nikish Kumar and I am an MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. And today in this lecture, we are going to learn a very important topic of the upper limb, that is anatomical snuff box. आज हम पढ़ेंगे anatomical snuff box. अब ये टॉपिक जो है स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में या तो 2 मार्क्स के लिए इन द ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस या 5 मार्क्स के लिए इन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये काफ़ी इजी टॉपिक है. सो टुडे वी लर्न एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. सो लेट अस बिगिन. नाउ व्हाट इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है क्या? इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन. यह एक डिप्रेशन है जो कि किस शेप का है? इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड. And where it is situated? It is situated at the posterolateral aspect of wrist. ये wrist के posterolateral aspect पर situated है. So this is wrist. This is the anterior aspect of wrist. This is the posterior aspect of wrist. And this is the posterolateral aspect of wrist. So here we have the location of the anatomical snuff box. So what is anatomical snuff box? It is a triangular shaped depression that is situated at the posterolateral aspect of wrist. सो जब हम अपने रिस्ट का पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट देख रहे हैं तो हमें स्नफ बॉक्स कहीं विजिबल नहीं दिख रहा है. सो हाउ शुड वी विजुअलाइज इट? नाउ इट इज बेस्ट सीन व्हेन वी एक्सटेंड द थंब. जब हम अपने थंब का एक्सटेंशन करते हैं तब वी कैन बेस्ट विजुअलाइज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. सो इफ आई एक्सटेंड माई थंब हियर राइट, I can see a triangular shaped depression right here. This is anatomical snuff box, right? Clear है? So what is anatomical snuff box? It is a depression that is triangular shaped. It is situated at the posterolateral aspect of wrist and it is best seen when we extend our thumb. जब हम अपने thumb का extension करते हैं, right? Now this anatomical snuff box has another name. This anatomical snuff box is also called the radial fossa. So anatomical snuff box को हम radial fossa के नाम से भी जानते हैं. So that's all about the definition part of anatomical snuff box. अब ये स्नफ बॉक्स जो है ये ट्रायंगल शेप का है, कुछ इस तरीके का. तो जाहिर से बात है कि इसके पास बाउंड्रीज होगी. जो ट्रायंगल का ये साइड है इसको हम कहेंगे इसकी लैटरल बाउंड्री और जो ट्रायंगल का ये साइड है इसको हम कहेंगे इसकी मीडियल बाउंड्री. ठीक है? तो ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन का एक साइड बनाएगा कौन सा बाउंड्री? लैटरल बाउंड्री. और एक साइड बनाएगा मीडियल बाउंड्री. अब कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसकी लैटरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं और मीडियल बाउंड्री फॉर्म करते हैं? तो ये स्ट्रक्चर्स हैं मसल के टेंडन्स. द लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय टेंडन ऑफ 2 मसल्स. टेंडन ऑफ APL, that is abductor pollicis longus, and the tendon of EPB, that is extensor pollicis brevis. So these two muscles, the tendon of these 2 muscles, they form the lateral boundary of anatomical snuff box. Which 2 muscles? The tendon of abductor pollicis longus and the tendon of extensor pollicis brevis. They form the lateral boundary of anatomical snuff box. While the medial boundary is formed by the tendon of EPL, that is extensor pollicis longus. So that's all about the boundaries of anatomical snuff box. It has got 2 boundaries, a lateral boundary and a medial boundary. The lateral boundary is formed by the tendon of abductor pollicis longus EPL and tendon of extensor pollicis brevis EPB, right? And the medial boundary is formed by the tendon of extensor pollicis longus. सो आइए अब हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज को डायग्राम पे देखते हैं. तो ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. ये आपको दिख रहा है लाइक दिस. दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन राइट हियर. दिस इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. अब ये जो है इस साइड ये कौन सी बाउंड्री होगी? लैटरल बाउंड्री. और इस साइड कौन सी बाउंड्री होगी? मीडियल बाउंड्री. सो द लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ विच 2 मसल्स? दिस वन, this green color structure right here. This is the tendon of abductor pollicis longus and this is the tendon of extensor pollicis brevis. So ये 2 मसल्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, इसके टेंडन मिलके बना रहे हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की लैटरल बाउंड्री. ये स्नफ बॉक्स डिप्रेशन है और ये इसकी लैटरल बाउंड्री है. दैट इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ abductor pollicis longus and the tendon of extensor pollicis brevis, राइट? और ये जो टेंडन है
ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ये बना रहा है स्नफ बॉक्स की मीडियल बाउंड्री। एंड व्हाट इज द टेंडन? द टेंडन इज ईपीएल, दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। सो दैट इज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द स्नफ बॉक्स। अब हम बात करते हैं स्नफ बॉक्स के रूफ के बारे में कि स्नफ बॉक्स का रूफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बॉक्स है तो बॉक्स का एक रूफ भी होगा। तो रूफ में सबसे पहले सबसे ऊपर हमारी कौन सी लेयर आती है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर हमारे पास कौन होगी? वी हैव स्किन, राइट? सो फर्स्ट लेयर इज स्किन। आफ्टर द स्किन वी हैव व्हाट? वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया। सो वी हैव स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, राइट? नाउ इन द सुपरफिशियल फेशिया वी हैव टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स राइट हियर। यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में स्नफ बॉक्स में दो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वेन होती है, वेन का नाम है सिफेलिक वेन। सो स्नफ बॉक्स के रूफ में वन वी हैव द सिफेलिक वेन, राइट? और जो दूसरी स्ट्रक्चर है दैट इज द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, राइट? सो द रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, then after the skin we have the superficial fascia. In the superficial fascia we have two important structures, the cephalic vein and the superficial branch of radial nerve. तो ये हो गया स्नफ बॉक्स का रूफ। अब हम बात करते हैं स्नफ बॉक्स का फ्लोर कि ये स्नफ बॉक्स जो है इसका फ्लोर कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं। तो फ्लोर में होंगे बोन्स होंगे। अब ये स्नफ बॉक्स जो है ये लैटरल साइड पे है, मैंने अभी बताया था कि ये कहाँ पे है? पोस्टीरियर लैटरल साइड पे है। सो लैटरल साइड पे कौन कौन से कार्पल बोन्स होते हैं? On the lateral side, we have scaphoid carpal bone, we have trapezium carpal bone, right? So these two bones are forming the floor of the anatomical snuff box. Also, the floor is formed by the base of first metacarpal bone, right? So we have three bones right here which form the floor of the anatomical snuff box. Those three bones are the scaphoid, trapezium, and the base of first metacarpal bone. सो ये हो गया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का रूफ और फ्लोर। रूफ इज फॉर्म बाय स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। इन द सुपरफिशियल फेशिया वी हैव टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स राइट देयर, सिफेलिक वेन एंड द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ विच नर्व? रेडियल नर्व। while the floor is formed by three bones mainly, that is the scaphoid carpal bone, trapezium carpal bone and the base of first metacarpal bone. तो ये हो गया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का रूफ और फ्लोर। अब हम आते हैं कंटेंट पे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का कंटेंट फॉर्म कर रहा है। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स? तो इसमें याद रखना है कंटेंट में केवल एक ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज एन आर्टरी, दैट इज रेडियल आर्टरी। सो द पॉइंट दैट इज टू बी रिमेंबर्ड राइट हियर इज दैट द रेडियल आर्टरी इज द कंटेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आइए इन चीजों को अब हम डायग्राम पे देखते हैं। तो ये डायग्राम है, इसमें हमने बाउंड्रीज तो पहले ही देख ली है कि इस साइड की बाउंड्री कौन सी बाउंड्री है? लैटरल बाउंड्री, दैट इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ टू मसल्स, दिस इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एंड द मीडियल बाउंड्री दिस इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। अब हम बात करते हैं रूफ में। रूफ में वी हैव व्हाट? सबसे पहले हमारे पास स्किन है, स्किन थोड़ा दी गई है तो स्किन दिखेगी नहीं यहाँ पे। देन वी हैव सुपरफिशियल फेशिया। In the superficial fascia, we have two important structures. Those two important structures are cephalic vein and the superficial branch of radial nerve. तो ये जो blue colored structure है, हम इससे vein बनाते हैं. So this is cephalic vein, right? So this is the cephalic vein that is present in the roof of the anatomical snuff box. And this yellow colored structure right here, this is the superficial branch of radial nerve. तो दो स्ट्रक्चर्स देखे हमने रूफ में, कौन कौन सा? एक तो सिफेलिक वेन देखा और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व देखा। ठीक है, फ्लोर कौन कौन से बोन्स बनाएंगे? स्केफॉइड, ट्रेपेजियम एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और फाइनली कंटेंट में केवल एक ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताया था मैंने, दिस दैट इज रेडियल आर्टरी। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है रेड कलर स्ट्रक्चर, दिस इज रेडियल आर्टरी, राइट? सो ये डायग्राम सबसे मेन डायग्राम है स्नफ बॉक्स का, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम। ऑल्सो वी आर गोइंग टू अपलोड दिस डायग्राम ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल एंड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट? सो ये हो गया स्नफ बॉक्स के बारे में सारी बातें, स्नफ बॉक्स का डेफिनेशन, उसकी बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर एंड कॉन्टेंट। अब हम बात करते हैं इसके अप्लाइड एनाटॉमी पे। तो हम आते हैं स्नफ बॉक्स के अप्लाइड एनाटॉमी पे। नाउ ये जो स्नफ बॉक्स है इसकी जो पहली क्लिनिकल एनाटॉमी है वो रिलेटेड है स्केफॉइड कार्पल बोन से। हमें पता है कि ये स्केफॉइड कार्पल बोन जो है इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का फ्लोर फॉर्म करता है, राइट? सो अगर इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की रीजन में लोकलाइज्ड पेन हो रहा है, देन दैट लोकलाइज्ड पेन इंडिकेट्स फ्रैक्चर ऑफ द स्केफॉइड कार्पल बोन,
कि अगर यहाँ पे लोकलाइज्ड पेन है सो वी मे बी सफरिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑफ द स्कैफोइड कार्पल बोन, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका जो रूफ है, इसके रूफ में एक वेन है, कौन सी वेन है, सिफेलिक वेन, एंड दिस सिफेलिक वेन इज द चॉइस वेन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शन। हमें सिफेलिक वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शंस देते हैं। ये हो गया इसका दूसरा क्लिनिकल। दो हो गए। एक तो इफ देर इज लोकलाइज्ड पेन इन द रीजन ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स that indicates fracture of scaphoid carpal bone, and second, the choice vein in the anatomical snuff box region for the administration of the IV injection, that is the intravenous injection, is cephalic vein। और तीसरा इसका कंटेंट क्या है, रेडियल आर्टरी है, ठीक है। तो इस रीजन में हम हाथ रख के रेडियल आर्टरी के पल्सेशंस को भी फील कर सकते हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड काफ़ी हाई प्रेशर में होता है और वो पल्सेशन प्रोड्यूस करता है, and these pulsations can be easily felt in the region of the anatomical snuff box। pulsation of which artery? वही आर्टरी जो स्नफ बॉक्स का कंटेंट है, that is the radial artery। so ये हो गया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का 3 क्लिनिकल एनाटॉमी। so that's all about the anatomical snuff box। I hope you like this video। for more such informative and concise content, please do like, share and subscribe Med Junction। this is Nikish Kumar from MGIMS signing off। Have a good day. Bye bye.